Hello everyone, this is Abhishek Singh, Assistant Professor at Engineering College, Banswara, Rajasthan. So welcome to the course of Electrical Machine 1. So far we have discussed all about the DC generators, and today we will start our discussion with the DC motor. Okay, so when we talk about the construction of DC motor, then it will be same as a DC generator because we are using same machine both as a generator and motor. Okay, so what DC motor is? It's a electromechanical energy conversion device which convert the DC electrical power, DC electrical input into the mechanical energy. ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल हम समझे तो उसी टाइप का डायग्राम यहाँ पे हमने बनाया. यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा कि इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ based on Lorentz principle. Okay, so what Lorentz say, a current carrying coil placed in a magnetic field experiences a force. तो प्रिंसिपल इसका हमारा क्या हो गया, करंट carrying coil placed in a magnetic field experiences a force. Okay, then a torque. Okay, so the magnitude of force will be F is equal to B I L, and then there will be a torque and motor will start rotating, and the direction of rotation is defined by Fleming left hand rule. Fleming left hand. Okay, direction of rotation is defined by Fleming left hand rule. What is Fleming left hand rule? This finger is your magnetic field and this is your current direction. Okay, this finger is your current direction and this is your motion, direction of rotation. Okay, so from here if you see, we have supplied the DC source here and the current carrying in this coil. So current carrying conductor placed in a magnetic field. Here is a magnetic field, north to south, experiences a force, and the direction of force, direction of rotation will be decided by Fleming left hand rule. So if we have here, current direction, let's say inside the paper, okay, then this is your magnetic field and this is your current, then your rotation will be like this. Okay, so here you will get the anti-clockwise rotation. Okay, so this is basic your principle of motor, that is any current carrying coil placed in a magnetic field experiences a force. Okay, DC मोटर की बात करें तो कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं हमारे पास और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. अगर हम इसको डिस्कस करें तो क्या एडवांटेज होंगे. अगर हम एडवांटेजेस या पहले चलो डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं. डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट डिसएडवांटेज हमारा क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन जो है मशीन का वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. ब्रशेस हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं, तो और जो मोटर्स हैं उनके कंपैरिजन में इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. तो कॉम्प्लेक्स
कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और फिर ब्रशेस हैं और सारी चीज़ें हैं, तो इसमें स्पार्किंग वगैरह, कंप्यूटेशन प्रॉब्लम। तो सेकंड तो आर्मेचर रिएक्शन, एंड कंप्यूटेशन प्रॉब्लम। दूसरा डिसएडवांटेज हमारा ये है। थर्ड ये हो सकता है कि नॉट दैट रगड, ठीक है, उतना ज़्यादा रफ नहीं है, क्योंकि इसमें स्पार्किंग होगी, तो जितने और भी सारे हमारे मोटर्स हैं उतना ये रग नहीं है, उतना रफ स्ट्रक्चर नहीं है इसका। और अगर बात करें डिज़ाइन, तो उसकी कॉम्प्लेक्स है, ये कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, एडवांटेजेस की बात करें अगर, तो एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं इसके आपके? एडवांटेज हमारे ये हैं कि इसमें आपका जो टॉर्क है, हाईएस्ट टॉर्क you'll get here. DC series motor, in DC series motor we'll discuss later. DC series motor you'll get highest torque. Okay, second, wide range of speed control is there. Wide range of speed control, ठीक है। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस हैं हमारे डीसी मोटर के। अब टाइप्स की बात करें तो जैसा हमने डीसी जनरेटर में पढ़ा, ठीक उसी तरह से यहाँ भी डीसी मोटर के भी हमारे अलग अलग टाइप हैं। एक परमानेंट डीसी मोटर हो सकता है पीएमडीसी, इसमें जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर रहे हैं नॉर्थ साउथ पोल बनाने के लिए, उसकी जगह हम परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी उसके अलावा सेपरेटली एक्साइटेड आप कहें शंट जनरेटर जैसे था, वहाँ शंट मोटर है, सीरीज़ मोटर है, कंपाउंड मोटर, सेम सारी चीज़ें वैसे ही। बस अभी क्या है, इक्वेशन सप्लाई बदल गई। वहाँ हमें मैकेनिकल इनपुट देते थे, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता था। यहाँ हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे और हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, ठीक है। देखते हैं एक बार जल्दी से टाइप्स में देखते हैं। तो एक तो पीएमडीसी अलग है आपका। शंट मोटर की बात करें, शंट मोटर की बात करें तो इस तरह से आपकी फील्ड वाइंडिंग इधर, ये आपका आर्मेचर, अभी आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब आप यहाँ से अपनी सप्लाई दे रहे हैं, वहाँ पे पहले आप लोड कलेक्ट कर रहे थे ईएमएफ, यहाँ आप सप्लाई दे रहे हैं। तो योर लोड करंट विल बी लाइक दिस एंड दिस इज़ योर आर्मेचर करंट, दिस इज़ योर फील्ड करंट, ओके। यहाँ आपका कुछ आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा एंड देयर विल बी एन बैक ईएमएफ हियर, ठीक है। तो ये बैक ईएमएफ क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी क्या है मैं बता देता हूँ, सिग्निफिकेंस हम बाद में करते हैं डिस्कस। बैक ईएमएफ क्या है, जैसे कि आपका मोटर रोटेट होना स्टार्ट हो गया एक बार, ठीक है, प्रिंसिपल लग गया लॉरेंट्ज का, मोटर विल स्टार्ट, रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो जब एक बार आपका रोटर रोटेट होने लगा तो फील्ड तो है ही, अभी भी वो फील्ड में ही है, फ्लक्स में, तो फील्ड के अंदर है और रोटेट हो रहा है रोटर। तो फिर कहीं ना कहीं फैराडेज लॉ भी हमारा लगेगा यहाँ पे कि कंडक्टर रोटेटिंग इन अ फील्ड, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। अब यहाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हमने देखा अभी, तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक जनरेटिंग एक्शन भी होगा। रोटेट कर रहा है फ्लक्स में तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा एंड दैट विल बी योर बैक ईएमएफ ईबी हियर, ठीक है। देयर इज अ सिग्निफिकेंसेस ऑफ दिस ईबी, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम एक अपने सर्किट उस पर आते हैं, शंट मोटर के। तो इक्वेशंस कैसे लिखेंगे आप? अभी आप देख रहे हैं कि आपकी इक्वेशन होगी IL इज इक्वल टू IF प्लस IA। डिफरेंस देखेंगे जनरेटर में कैसा था, जनरेटर में हमारा IA यहाँ से निकल रहा था, तो IA इज इक्वल टू IL प्लस IF था।
तो सिंपल सर्किट है ये, हाँ ठीक है। सर्किट जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम KCL लगाते हैं, KVL लगाते हैं, बस वही करना है, ठीक है। KVL इक्वेशन अगर आप लगाएंगे यहाँ पे अभी तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चूँकि, EB प्लस IA RA आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। ब्रश ड्रॉप अगर बोला तो ब्रश ड्रॉप भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। इक्वेशन आपकी चेंज हो गई यहाँ पे, ओके। ठीक है, इसी तरह से हर जगह, जैसे सीरीज जनरेटर है, सीरीज जनरेटर पढ़ा तो सीरीज मोटर भी है उसके लिए। अब सीरीज मोटर में भी क्या होगा, सीरीज मोटर की बात करेंगे, तो एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होगी, फिर आर्मेचर, और यहाँ हम इसको अपना सप्लाई दे देंगे इधर भी, ठीक है। ये करंट डायरेक्शन होगी IL, यही आपके IA भी होगी, और यहाँ आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस और आपका EB, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं आप, V इज इक्वल टू EB प्लस IA RA। यहाँ आपका IA जो है वही आपका IL है, सब कुछ है, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर कंपाउंड भी है, जो भी हमने वहाँ पढ़ा था सब वही, डायरेक्शन चेंज होगी। अब हम इनपुट दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें अपने पावर ट्रांसफ़र की, इसी इक्वेशन से चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर मैं I से मल्टीप्लाई कर दूँ आर्मेचर करंट से, तो हम लिख सकते हैं इसको VIA इज इक्वल टू EB IA प्लस IA स्क्वायर RA, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हुआ, ये हुआ हमारा DC पावर इनपुट, ये हमारा इनपुट हो गया। एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल पावर डेवलप, दिस इज योर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, ठीक है। ये EB IA और ये आपका लॉस हुआ, ठीक है। तो अगर हम मैकेनिकल पावर डेवलप लिखें यहाँ पे PM, दैट इज आवर EB IA, वो क्या हो जाएगा, VIA माइनस IA स्क्वायर RA, क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम पावर निकालना चाहें, कंडीशन कि मैक्सिमम पावर जो होगी मिलेगी हमें किस कंडीशन में मिलेगी, तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, लोड करंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें PM को। तो अगर आप लिखेंगे dPM बाई DIA, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, V माइनस 2IA RA मिलेगा। अब आपको कंडीशन निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वेट करते हैं। इसको अगर आप इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू 2IA RA, ठीक है। तो यहाँ अगर आप लिख देंगे V इज इक्वल टू 2IA RA, IA RA इज इक्वल टू V बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब आपको मिल जाएगा, यहाँ से IA RA को हम V बाई 2 लिख दें, ये जो कंडीशन मिला, तो आपको EB में क्या मिल जाएगा, EB इज इक्वल टू V बाई 2। इसका मतलब यहाँ से आपको कंडीशन मिलेगा EB इज इक्वल टू V बाई 2। तो ये है आपकी कंडीशन है फॉर मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर के लिए। अच्छा, इसी टाइम पे अगर हम एफिशिएंसी की बात कर लें तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट हो रहा है मैकेनिकल पावर डेवलप जो है वो आउटपुट है, तो मान लीजिए ये EB IA आपका आउटपुट है और इनपुट हो गया VIA, ठीक है। IA कैंसिल कर दें तो EB बाई V, और EB हमारा खुद जो है वो, अगर इस कंडीशन की बात करें मैक्सिमम पावर जहाँ मिल रही है वो V बाई 2 है, तो EB अगर V बाई 2 है, नीचे V, तो एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी 50%। तो जहाँ मैक्सिमम पावर हमें मिल रहा है जिस कंडीशन पे, वहाँ उस टाइम पे एफिशिएंसी आपकी जो होगी वो 50% होगी। तो हमारा मोटर जो है वो इस कंडीशन के लिए डिज़ाइन नहीं होता। मोटर विल बी डिज़ाइन फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी एट द रेटेड लोड, ओके।
सो इस कंडीशन के लिए हमारा डिज़ाइन नहीं होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम पावर लेने जाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी उस टाइम 50% ही होगी। तो हमारा जो डिज़ाइन होगा वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के टर्म में डिज़ाइन होगा। इट विल हैव अ मैक्सिमम एफिशिएंसी एट द रेटेड लोड। ठीक है, लेकिन चलिए आपको मालूम होना चाहिए, इसमें न्यूमेरिकल्स कई बार आते हैं एग्जाम्स में कि मैक्सिमम पावर में क्या कंडीशन है, फिर उस टाइम एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, तो अभी टाइप्स में हम नहीं जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेम इसी टाइप के जैसे हमने जनरेटर में पढ़ा कंपाउंड और ये, तो वो सारी सर्किटरी बनेगी, शॉर्ट लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, बस करंट डायरेक्शन चेंज होंगी, वो आप सिंपल सर्किट जो है बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सिग्निफिकेंस जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा, जनरेटर और मोटर को अगर आप ध्यान से देखें, चलो एक स्लाइड देखते हैं। शंट मोटर और शंट जनरेटर। तो मोटर में हम इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं, दैट इज वी दे रहे हैं, ई भी हमें मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो वी होगा दैट इज ग्रेटर देन ई बी। जनरेटर में आप ई भी दे रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका ई जो है वो, ई जी जो है वो इज ग्रेटर देन योर वी। तो जब भी ई वी से बड़ा हो समझ लीजिए आपका वो मशीन है, क्योंकि मशीन तो सेम है, पहचानेंगे कैसे? तो ई आपका अगर वी से बड़ा है तो वो आपका जनरेटर है, वी अगर ई से बड़ा है तो वो आपका मोटर है, दोनों बराबर है तो वो फ्लोटिंग मशीन है। ठीक है, फील्ड डायरेक्शन दोनों में सेम होती है, आप देख रहे होंगे डायरेक्शन जो था आई एफ का इस सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी, चाहे हम इनपुट इधर से दें और चाहे आर्मेचर से निकले तब भी फील्ड में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी, शंट की बात करें। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, शंट जनरेटर की सर्किटरी हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मोटर की कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे हम सिग्निफिकेंस की। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ योर EB, that is back EMF, बैक EMF। ठीक है, क्या है? तो पहला तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है आपके मशीन को। ठीक है, इट रेगुलेट्स आर्मेचर करंट, आर्मेचर current, okay, and make your machine motor self regulating। ठीक है, ठीक। और बैक ईएमएफ, जैसे सपोज स्टार्टिंग में आपका बैक ईएमएफ नहीं, स्टार्टिंग में जब मोटर स्टार्ट होने वाला है, मतलब अभी रोटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बैक ईएमएफ नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर बैक ईएमएफ नहीं रहा तो, जैसे कि आपके अभी इक्वेशन हमने लिखा था ना पीछे, क्या लिखा था कि V इज इक्वल टू, या फिर V सप्लाई दिया, V इज इक्वल टू EB प्लस IA RA। तो यहाँ से अगर आप करंट लिखना चाहेंगे IA, वो आपका हो जाएगा V माइनस EB बाई RA। ठीक है, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस से बहुत छोटा रहेगा, शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, बहुत कम रेंज का होता है, 1 ओम 0.1 ओम ऐसे, और फील्ड रेजिस्टेंस आपका हाई रहता है, 100 ओम 200 500 1000। तो IA अगर स्टार्टिंग की बात करें, जब EB हमारा नहीं रहेगा, मोटर बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है अभी, EB जब नहीं रहेगा तो क्या होगा, V बाई RA रह जाएगा आपका करंट, और RA जो कि बहुत कम है, 0.1 ओम ऐसा कुछ है, तो आपको समझिए करंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, 2300 एम्पियर भी, 220 एम्पियर, जैसे भी 1 ओम है तो 220 एम्पियर, वोल्टेज 220 है तो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपकी करंट बहुत हाई हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे EB डेवलप होगा, जैसे जैसे मोटर आपकी घूमना शुरू करेगी, EB डेवलप होगा, EB डेवलप होगा तो ये डिफरेंस आपका आ जाएगा, V EB ऑलमोस्ट एक आसपास है, जैसे 220-30 ये है तो वो 210 215 रहेगा, तो उनका डिफरेंस जो बचा रहेगा बहुत कम हो जाएगा, 10-15 ऐसा, तो फिर करंट हमारी लिमिट हो जाएगी। वही हमने पहला पॉइंट लिखा कि इट रेगुलेट्स योर
आर्मेचर करंट एंड मेक योर मोटर सेल्फ रेगुलेटेड वन। ठीक है, तो इसका मतलब जब स्टार्टिंग में ईबी नहीं है, जब ईबी नहीं है तो करंट बहुत हाई हो रहा है। हाई करंट एट स्टार्टिंग इन absence ऑफ ईबी। तो अब स्टार्ट करने के लिए जो ये हाई करंट है हमको इसको लिमिट करना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो डीसी मोटर हैं उसको स्टार्टर के थ्रू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम स्टार्टर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डीसी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, डीसी मोटर इज़ सेल्फ स्टार्टिंग, बट जो स्टार्टिंग करंट है वो बहुत हाई होगी बिकॉज देयर इज़ नो ईबी बैक ईएमएफ इन स्टार्टिंग, तो उसको हमको लिमिट करना होगा। तो लिमिट करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप आर्मेचर के सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस लगा दीजिए स्टार्टिंग में, और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हो कि वो रेजिस्टेंस रिमूव हो जब मशीन अपना स्पीड पिकअप कर ले। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब हमको अभी यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना होगा स्टार्टर कि कौन कौन से स्टार्टर हैं, कैसे कैसे हम अपने डीसी मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ के बाद हम चलते हैं अपने स्टार्टर्स पे। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट डायग्राम देख रहे होंगे आप। ये हमने क्या किया, आर्मेचर है आपका, यहाँ पे आर्मेचर कनेक्ट हुआ है सीधे सीरीज में, रेजिस्टेंसेस हैं बहुत ढेर सारे। ठीक है, ये यहाँ से, तो ये जो हैंडल है स्टार्टिंग में पॉइंट 1 पे जाएगा। आपने अपने लैब में देखा होगा एक ऐसा लीवर सा होता है, हम उसको ऐसा मूव करते हैं धीरे धीरे, तो जब पहला पोजीशन पे लेके जाते हैं तो ये पहली पोजीशन होती है जहाँ पे इतने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपके आर्मेचर के सीरीज़ में लग जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में करंट को लिमिट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम ये लीवर अपना मूव करते हैं ऐसे, और जब हम यहाँ आते हैं ये पोजीशन पे, रन पोजीशन पे, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइम तक क्या होता है, ये फील्ड वाइंडिंग जो कनेक्टेड है, इससे आप देख रहे होंगे, इसको हम बोल रहे हैं नो वोल्टेज कॉइल। इसका अभी बात करेंगे इसकी। ये हमारा नो वोल्टेज कॉइल है, तो यहाँ से फील्ड वाइंडिंग जो कनेक्टेड है यहाँ पे, और ये यहाँ से इस पॉइंट से भी कनेक्टेड है, तो ये एनर्जाइज रहेगा उस टाइम तक। और ये जो भी है यहाँ पे स्प्रिंग के अपोजिट में एक्शन हो रहा था, ये एनर्जाइज होकर इस स्पिंडल को लॉक कर लेगा और कनेक्शन आपका बना रहेगा, मोटर चलती रहेगी और सारे रेजिस्टेंस भी रिमूव हो चुके हैं धीरे धीरे तब तक, जब तक स्पीड गेन करेगा। ये तो नॉर्मल ऑपरेशन इसका है कि भाई स्टार्टिंग में हमने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया और ये हैंडल जो है वो यहाँ पे, ये चूँकि ये एनर्जाइज हो जाएगा फील्ड के थ्रू, इसके थ्रू, और ये लॉक रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या और फैसिलिटीज़ हैं। एक यहाँ पे कुछ चीज़ दिख रही है आपको, ये हमारा ओवरलोड रिलीज़। ठीक है, एक ये जो हम जिसकी बात की हमने, ये हमारा है नो वोल्टेज कॉइल। नो वोल्टेज कॉइल का मतलब क्या रहा कि जब भी आपके कभी सप्लाई फेल हो जाए या फिर आपका फील्ड कनेक्टेड है इससे, तो अगर आपका फील्ड फेल हो जाए, ठीक है, या फिर सप्लाई फेल हो जाए, तो ये आपका डी एनर्जाइज्ड हो जाएगा, और ये आपके चूँकि स्प्रिंग के अपोजिट वो काम कर रहा है, तो फिर स्प्रिंग एक्शन काम आएगा पिक्चर में और वो स्पिंडल को वापस ले जाएगा ऑफ पोजीशन पे, ये जहाँ पे ये पहले है ऑफ पे। ठीक है, तो आपका मोटर बंद हो जाएगा। तो कभी भी है कि सप्लाई में कुछ फेलर हुआ या फिर कोई आपकी फील्ड फेलर हुई, तो ऑटोमेटिक ये जो नो वोल्टेज कॉइल है इसका डी एनर्जाइज्ड हो जाएगा और ये रिलीज़ कर देगा आपके स्पिंडल को, हैंडल को। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन आपका स्कीम है इसमें। उसी तरह से ये जो हम बात करें ओवरलोड रिलीज़ की, इसका भी काम क्या है, जैसे ही मशीन आपकी ओवरलोडेड होगी, मोटर आपका ओवरलोडेड होगा, तो ये क्या करेगा, ये एनर्जाइज होगा और ये जो यहाँ पे लीवर है, ये लीवर को ऊपर लिफ्ट करेगा वो, और ये ट्रायंगल जो है बना हुआ इसमें, ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये फिर से ये आपका जो नो वोल्टेज कॉइल है इसको शॉर्ट कर देगा, ये डीएनर्जाइज्ड हो जाएगा और फिर से वो हैंडल को छोड़ देगा। तो ये भी एक तरह का आपका प्रोटेक्शन स्कीम हुआ। ठीक,
ओके इधर। तो ये आपने देखा कि कैसे ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर काम कर रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसको इसी सेम स्टार्टर को हम शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम बेसिकली शंट एंड कंपाउंड जनरेटर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें सारे क्या फंक्शन है हमने देख लिया। एडवांटेज, नो वोल्टेज कॉइल का काम क्या है, ओवरलोड रिलीज का काम क्या है, ठीक है। जैसे ओवरलोड होगा ये यहाँ लीवर को उठाएगा और ये आपका फिर से नो वोल्टेज कॉइल जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, ठीक है, और ये छोड़ देगी हैंडल को, मोटर ऑफ, स्टार्ट। और बाकी जो इसमें चूँकि ये कनेक्टेड है इससे, जैसे ही सप्लाई फेलर या फिर फील्ड फेलर होगा तो आपका वो रिलीज़ कर देगा। ये भी एक प्रोटेक्शन है। एक दिक्कत क्या है इसमें कि अगर हम ये शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर, इसको अगर हम डिसएडवांटेज बोलें या फिर लिमिटेशन बोल दें इसका, तो लिमिटेशन क्या है इसमें कि अगर हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, लिमिटेशन क्या है, इफ़ वी आर डूइंग स्पीड कंट्रोल ऑपरेशन, इन दोनों मोटर्स में, शंट और कंपाउंड में, अगर हम स्पीड कंट्रोल ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर फील्ड फ्लक्स मेथड है तो हम फील्ड फ्लक्स अपना वेरी करते हैं। तो फील्ड फ्लक्स अगर वेरी करें तो कई बार हम क्या है, फ्लक्स रिड्यूस होती रहती है और स्पीड हमारी बढ़ती है, यही होता है, एबव रेटेड स्पीड मिलती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या होगा, हम फ्लक्स कम करते रहते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाते रहते हैं, उस ब्रांच का फ्लक्स कम होती रहती है, स्पीड बढ़ती रहती है। तो उसको ये सेंस कर सकता है एज अ फील्ड फेलर। अब चूँकि फील्ड वाइंड डायरेक्ट कनेक्टेड है सीधे इससे, नो वोल्टेज कॉइल से, तो जैसे ही हम अपना स्पीड कंट्रोल मेथड में फील्ड फ्लक्स कम करते जा रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं ये सेंस कर सकता है कि भाई फील्ड फेल हो रही है और ये नो वोल्टेज कॉइल डी एनर्जाइज होकर आपका हैंडल छोड़ सकता है और मोटर आपका ऑफ हो सकता है। तो ये एक माल फंक्शनिंग आपकी हो सकती है अगर आप स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर हम ये 3 पॉइंट स्टार्टर को अवॉइड करेंगे वहाँ पे जब हमको उसका स्पीड कंट्रोल ऑपरेशंस भी करने हैं, ठीक है। तो क्या दिक्कत हुई लिमिटेशन में, जब हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, इट विल सेंस field weakening as field failure, ठीक है, और वो नो वोल्टेज कॉइल को वो रिलीज, वहाँ से वो हैंडल रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम नेक्स्ट जो है जाते हैं किसके लिए, अपने 4 पॉइंट स्टार्टर के लिए, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ हमने क्या किया, एडिशन क्या किया, एक यहाँ हमने एक फील्ड को जो है वो अलग कर लिया, वो सीधे हमारा इससे कनेक्टेड है, देख रहे होंगे आप, फील्ड जो है एनर्जाइज्ड है वो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, और एक अलग से पॉइंट बनाया एन। पिछला डायग्राम अगर आप देखें, चलिए पहले पिछला देखते हैं। पिछला तो इसमें आपने क्या देखा कि 3 पॉइंट थे, लाइन, फील्ड, आर्मेचर, इसलिए हमको 3 पॉइंट स्टार्टर बोल रहे थे, और फील्ड ही कनेक्टेड था नो वोल्टेज कॉइल से। और वही चीज़ इसमें हमारी हमको एक बेनिफिट रहा। नेक्स्ट में हमने क्या किया, एक अलग से नो वोल्टेज कॉइल के लिए अलग से एक पॉइंट दिया कनेक्शन, यहाँ पे सीधे सप्लाई से वो एनर्जाइज्ड रहेगा, ठीक है। तो यही एक सिर्फ चेंज किया, किसके लिए, वो जो फील्ड फेलर हमारा सेंस कर ले रहा था फील्ड वीकनिंग की वजह से। अब आराम से आप फील्ड कंट्रोल करिए, ये तो डायरेक्ट कनेक्टेड है यहाँ से, ठीक है, और ये सीधे सप्लाई से कनेक्टेड है नो वोल्टेज कॉइल, तो फील्ड फेलर से उसको कोई दिक्कत नहीं है,
बाकी सारे सिस्टम सेम है, वो चलेगा। नो वोल्टेज कॉइल यहाँ ओवरलोड होगा तो ये यहाँ से उठाएगा लीवर को और इसको शॉर्ट करेगा, फिर ये छोड़ देगा हैंडल को। तो बाकी सबका काम सेम है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो जैसे लगी थी वैसे लगी हुई हैं। तो ये आप डिफरेंस समझेंगे कि 3 पॉइंट से 4 पॉइंट पे हम क्यों गए, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली 4 पॉइंट स्टार्टर रहा। ठीक है, तो ये हम शंट और कंपाउंड मोटर में यूज़ करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर, और 3 पॉइंट में कुछ एक लिमिटेशन है, उसको चेंज करके हमने 4 पॉइंट स्टार्टर यूज़ किया, ठीक है। 4 पॉइंट इसमें यूज़ किए। नेक्स्ट हमारा एक सीरीज़, अगर बात करें हम सीरीज़ की, जब हम सीरीज़ मोटर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं ये हमारी होगी, इसको बोलेंगे 2 पॉइंट स्टार्टर, क्योंकि यहाँ फील्ड आर्मेचर दोनों सीरीज़ में है, पता है हमको। तो 1 पॉइंट वैसे भी हमारा बचता है, ठीक है। तो ये हम इसको यूज़ करेंगे फॉर सीरीज मोटर, विल यूज़ 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बस ये इस फील्ड और आर्मेचर आपकी चूँकि सेम सीरीज़ में कनेक्टेड होती है, तो एक ही पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपका लाइन है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये यहाँ से कनेक्टेड है नो वोल्टेज कॉइल से। तो स्टार्टिंग में हम ऑफ पोजीशन में रहेंगे, फिर 1 पे जाएंगे तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपके सीरीज़ में ऐड हो जाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पीड गेन होगी, हमारा पॉइंट आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ आ जाएंगे रन कंडीशन पे, तो इसमें लॉक हो जाएगा वो नो वोल्टेज कॉइल में आपका हैंडल, ठीक। और फिर उसके बाद अगर सप्लाई फेल हुई तो फिर वो हैंडल छोड़ेगा, या फिर ओवरलोड हुआ तो यहाँ ये शॉर्ट सर्किट कर देगा आपके नो वोल्टेज कॉइल को, और फिर आपका हैंडल छोड़ देगा, मोटर ऑफ हो जाएगी। तो ये सिंपल प्रोसेस है, बस आपको ध्यान रखना है कि किस में हम क्या यूज़ करते हैं। तो लास्ट पॉइंट याद रखेंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर हम यूज़ कर रहे हैं शंट और कंपाउंड के लिए, लेकिन उसमें लिमिटेशन यही है कि फील्ड, अगर फ्लक्स को हम वेरी कर रहे हैं अपने स्पीड कंट्रोल के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको फील्ड फेलर सेंस कर सकता है वो, और चूँकि फील्ड डायरेक्ट कनेक्टेड थी नो वोल्टेज कॉइल से, तो नो वोल्टेज कॉइल ऑपरेट होगा और आपका हैंडल ऑफ पे आ जाएगा। उसको रिमूव करने के लिए हमने 4 पॉइंट स्टार्टर यूज़ किया, उसमें एक सेपरेट पॉइंट दिया, फील्ड को अलग किया उससे नो वोल्टेज कॉइल से, सेपरेट पॉइंट जो सीधे सप्लाई से हमारा फील्ड नो वोल्टेज कॉइल कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हुआ आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोटर, और हम उसको कैसे स्टार्ट करेंगे सेफ स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर देंगे अपना स्पीड कंट्रोल मेथड्स और आपके कैरेक्टरिस्टिक डीसी मोटर के जितने भी मोटर्स हैं उनकी टॉर्क स्पीड, ठीक है। एक सारी कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।